Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So here I am with another session for the next CIB exam. So here is the first question we'll discuss regarding the forex. So we have already covered some important questions as well. So you can refer the respective playlists, right? So let's start the session for today. Okay, 1 second. Okay, so here you can see first question is FedI requires bank to undertake profit and loss evaluation of forex position at the end of each dash. So जितना भी बैंक का रहता है प्रॉफिट और लॉस रिगार्डिंग देयर फॉरेक्स रिलेटेड बिजनेस, उसको क्या करना पड़ता है, फेडआई को रिपोर्ट करना होता है. सो ये कौन से इंटरवल में बैंक रिपोर्ट करता है. सो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर यू कैन सी, फर्स्ट ऑप्शन इज वीक, मंथ, क्वार्टर और ईयर, राइट. सो बैंक जो रिपोर्ट करता है द इंटरवल इज एवरी मंथ बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस रिगार्डिंग देयर फॉरेक्स बिजनेस टू द फेडआई, राइट. सो इट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, that is monthly, right. So we'll see the next question. So here is the next question. Entities which are authorized only to buy foreign currency notes or travelers checks are known as. सो जो एंटिटीज़ जिनको ऑथोराइज किया गया है ओनली दैट इज़ डीलिंग विद द फॉरेन करेंसी नोट्स और ट्रैवलर चेक्स, उस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, राइट. सो हियर इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं. फर्स्ट है ऑथोराइज पर्सन कैटेगरी 1. सो नेक्स्ट है एडी दैट इज़ कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4. सो हमारा 4 टाइप के कैटेगरी के रहते हैं. सो यहाँ पर क्या डीलिंग किया है, इट्स डीलिंग विथ, एक सेकेंड. So it's dealing with travelers checks and foreign currency, right. So here is the correct answer is authorized dealer category 3. So normally category 3 वाले जो authorized dealer रहते हैं they are dealing with foreign currency notes and travelers checks, right. So we'll see the next question. So this is the question number 3. Okay, so what is the maximum time period for crystallization period, right. So crystallization के लिए what is the maximum time period. So कितना maximum time period हम provide करते हैं for the crystallization, right. 15 days, 13 days, 45 days और 60 days. So crystallization period जो रहता है उसका जो maximum period रहता है, so that is option number D is the correct one, that is 60 days, right. So just remember crystallization is a very important question. So just remember the maximum time period for the crystallization is 60 days. So we'll see the next question. So here is the next question number 4, right. So before that I would like to also mention, if you are new to our channel and if you have not subscribed to our channel, do subscribe so that we also have some more and more important questions regarding the CIB exams, right. So and also share with your friends those who are preparing for the exam. So we'll see the next question, question number 4. That is failure of the counterparty during the course of settlement due to the time zone difference between the two currencies to be exchanged is the taxes. इसका मतलब क्या होता है, जब हमारा कोई भी काउंटर पार्टी मतलब कभी भी सेटलमेंट होता है उस बेस में इफ़ देयर इज एनी फेल्यूअर ड्यू टू द काउंटर पार्टी, जैसे कि ए है एक पार्टी और एक है बी पार्टी, राइट. सो ए ने तो डीलिंग कर लिया बट देयर इज सम फेल्यूअर फ्रॉम द अदर पार्टी, दिस इज द काउंटर पार्टी, दैट इज. सो बी के तरफ से अगर कुछ भी फेल्यूअर रहता है उस केस में दैट सेटलमेंट कैन नॉट बी डन, राइट. सो इन दैट केस व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फेल्यूअर, देयर विल बी समथिंग लाइक time zone difference, right. If we talk about India, A is in India and B is in USA, right. So there will be obviously time zone difference because whenever there will be daytime in India, that time it will be night time in USA, right. So there will be some time zone difference, and due to two currencies. Obviously in India the currency is INR and in USA the currency will be involved, that is dollar, right. So there are two
currencies are also involved, and what is the main cause? That is time zone difference and also failures of the party B. Party B is the counterparty. So in that case, this risk is known as option number A देखिए, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क और लीगल रिस्क, राइट. सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक की वर्ड है जिसके बेसिस में वी कैन इजीली गेट टू नो कि इसका आंसर क्या रहेगा. ठीक है, एक तो है टाइम जोन, और यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट, मतलब उनका जो है सेटलमेंट दैट कैनॉट बी डन, it cannot be successful, settlement cannot be successful due to the failure of the counterparty. So settlement word यहाँ पर involved में है, so that's why this risk will be known as settlement risk, right. So we'll see the next question. So question number 5 is how forward rates are calculated. So जो forward rates रहता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बाय एडिंग ए मार्कअप टू द स्पॉट रेट, बाय एडिंग ए प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट रेट, बाय डिडक्टिंग प्रीमियम और डिस्काउंट फ्रॉम द स्पॉट रेट, बाय एडिंग प्रीमियम टू एंड डिडक्टिंग डिस्काउंट फ्रॉम द स्पॉट रेट, राइट. सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, जो हमारा फॉरवर्ड रेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. फॉरवर्ड रेट मतलब क्या है, जैसे आज की डेट है, हम उसको आफ्टर 1 मंथ जो डेट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो इसके लिए हमें पता है दो ही इन्वॉल्व रहता है, एक रहता है प्रीमियम, नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट. एंड हमें क्या पता है, प्रीमियम क्या होगा, एडिशन होगा, डिस्काउंट होगा सब्सट्रैक्ट. ठीक है, सो सिंपली यू कैन इजीली नाउ आंसर दिस. यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यहाँ पर हम प्रीमियम को ऐड कर रहे हैं एंड स्पॉट रेट से डिडक्ट किसको कर रहे हैं, आपका डिस्काउंट को, देन वी विल गेट द फॉरवर्ड रेट्स. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so here's the next one. An import bill not retired by the importer should be crystallized by the bank on what day? So एक इम्पोर्ट बिल है जो कि इम्पोर्टर के तरफ से इसको कैंसिल, रिटायर नहीं, मतलब हम अगर इजी वर्ड में सुने तो इज नॉट कैंसल बाय द इम्पोर्टर. सो इन दैट केस बैंक कैन डू द क्रिस्टलाइज प्रोसेस ऑन व्हाट डे. सो बैंक इसको क्रिस्टलाइज मतलब इसको एक्सपायर कब कर सकता है. ठीक है, so on 21st day from the date of bill loading, on the 10th date from the receipt of document at the counters of the bank, on the expiry of 5 banking days. So next one is on the डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल. सो बैंक इसको क्रिस्टलाइज, अगर इम्पोर्ट बिल को इम्पोर्टर ने रिटर्न नहीं किया हुआ है, शुड बी क्रिस्टलाइज बाय द बैंक ऑन व्हाट डे. सो बैंक के तरफ से इसको क्रिस्टलाइज कब तक किया जा सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज, यू कैन सी हियर, ऑन द 10th डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एट द काउंटर्स ऑफ द बैंक. सो बैंक का काउंटर में जब डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा उस डेट से नेक्स्ट ऑन द 10th डेट, सो उससे जो नेक्स्ट 10 डेज रहेगा तब तक के लिए, उसके बाद ऑन द 10th डेट, जो फर्स्ट डे से जो 10th डेट रहेगा, 1 तारीख को रिसीव हुआ, सो 10 तारीख को क्या करेगा ना, बैंक उसको क्रिस्टलाइज कर सकता है. ठीक है, बैंक उसको क्रिस्टलाइज कर ही देगा. सो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो भी आपका बिल रहेगा इम्पोर्टर बिल, बैंक उसको क्रिस्टलाइज कर सकता है ऑन द 10th डेट फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एट द काउंटर्स ऑफ द बैंक. ठीक है, बैंक के काउंटर में जब से जिस दिन से डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है उसका जो नेक्स्ट 10 डे के बाद जो 10th डेट रहेगा, नॉट कि 11th डे, दिस इज द 10th day, right? So option number B is the correct answer. We'll see the next question. So here is the next question. You can see here, the value of currency is decided by supply and demand factors for a particular currency in dash rates mechanism. The value of currency is decided by the supply and demand factor for a particular currency in dash rates mechanism. ठीक है, सो जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो डिसाइड होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर. जितना भी सप्लाई होगा और डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो करेंसी का वैल्यू है वो डिसाइड होता है फॉर ए पर्टिकुलर करेंसी. ठीक है, सो कौन से रेट मैकेनिज्म के द्वारा ये किया जाता है. ठीक है, ऑब्वियसली देखिए इसका मतलब है, पहले देख लेते हैं ऑप्शंस. फिक्स्ड, फ्लोटिंग मैकेनिज्म, फिक्स्ड मैकेनिज्म और फ्लोटिंग मैकेनिज्म, बोथ ए एंड बी, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, नन ऑफ दिस. फिक्स्ड मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ द करेंसी विल बी द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द
सप्लाई एंड डिमांड, जो सप्लाई है एंड डिमांड है वो जितना ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए उससे जो वैल्यू रहेगा करेंसी, जो वैल्यू रहेगा करेंसी वो अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो ये रहेगा आपका फिक्स केस में, द वैल्यू ऑफ करेंसी विल बी फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द सप्लाई एंड डिमांड, वो रहेगा हमारा फिक्स के केस में, गॉट इट। सो यहाँ पर जो डेफिनेशन बताया गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जितना भी सप्लाई एंड डिमांड है वो ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ जो VC है, वैल्यू ऑफ करेंसी है, दैट विल आल्सो ऊपर एंड नीचे होगा, ये भी चेंज होता है, ठीक है। सो ये केस में दैट विल, इसमें आप समझ सकते हैं फ्लोटिंग के केस में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंगली ये अफेक्ट होता है। सो ये रहेगा इसका जो आंसर है, फ्लोटिंग रेट मैकेनिज्म में हमारा जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स एज वेल, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक है, ऑल फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस अप टू डैश आज फॉर फेडरल गाइडलाइंस टू बी कन्वर्टेड इमीडिएटली इनटू इंडियन रुपीज़, ठीक है। सो इसका कितना है आंसर, जो इंडियन रुपीज़ रहेगा उसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे अप टू हाउ मच अमाउंट, दैट इज 50,000, USD 10,000, USD 5,000 एंड यूरो 1,000, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, हम इसको इमीडिएटली जो इनवर्ड रेमिटेंस रहेगा, ठीक है, दूसरे से हमारा इंडिया को आ रहा है, उस केस में हम इमीडिएटली कितने अमाउंट तक कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू द इंडियन रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर ABCD है, इससे जो करेक्ट आंसर है दैट इज so here you can see the correct answer is up to USD 5,000 it can be converted immediately into एक सेकेंड। सो इमीडिएटली इनटू इंडियन रुपीज़, ये जो है इमीडिएटली इनटू इंडियन रुपीज़ में हमारा अप टू USD डॉलर जो है 5,000 कैन बी कन्वर्टेड, राइट। सो ऑप्शन नंबर C है इसका करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, all rates quoted in foreign exchange are generally dash rates, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जितना भी all rates quoted in foreign exchanges are generally dash rates, सो जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे जो भी रेट हमारा मेंशन और क्वेटेड होता है तो वो क्या कौन सा वाला रेट होता है, ठीक है। सो नॉर्मली वो कौन सा वाला रेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड। सो जैसे कि हमें पता है फॉरवर्ड में क्या होता है, स्पॉट के जो भी हमारा उसका बेस पॉइंट क्या होता है, स्पॉट में अगर हम करेंगे, स्पॉट में अगर प्रीमियम को ऐड करेंगे और स्पॉट रेट से आपका डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाता है। तो नॉर्मली जितने भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रहता है उसमें हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट रेट होता है विच इज़ द बेस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज दैट इज़ स्पॉट रेट, राइट। सो योर द आंसर इज ऑप्शन नंबर A। और यहाँ पर आपका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमारा प्रीवियसली क्वेश्चन में था, यहाँ पर प्रीमियम को ऐड करते हैं और डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग्स। सो यहाँ पर कौन सा वाला इनकरेक्ट है वी नीड टू फाइंड आउट, राइट। सो जस्ट रिमेंबर हमें इनकरेक्ट वाला फाइंड आउट करना है एंड आपको साइड करना है करेक्ट वन को। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, इन डायरेक्ट कोटेशन। सो डायरेक्ट कोटेशन में क्या होता है, इन डायरेक्ट कोटेशन लोकल करेंसी इज वेरिएबल, इन डायरेक्ट कोट्स लोकल करेंसी इज फिक्स्ड, इन इनडायरेक्ट कोट्स लोकल करेंसी इज वेरिएबल, इन इनडायरेक्ट कोट्स लोकल करेंसी इज फिक्स्ड, ठीक है। सो इसमें से ओबियसली दो करेक्ट है और दो रंग है। यहाँ पर ऑप्शन है मेन आपको यहाँ पर है ABCD में A है 1 and 2, 1 and 3 and 2 and 3 and 2 and 4, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका जो मेन इंपॉर्टेंट, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट कोर्स में क्या होता है एंड इनडायरेक्ट कोर्स में क्या होता है। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे वहाँ पर हम कहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि डायरेक्ट कोर्स एंड इनडायरेक्ट कोर्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, विल जस्ट कवर ब्रीफली रिगार्डिंग द टॉपिक। सो यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन है, पहले फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, डायरेक्ट कोर्स में क्या होता है। एक्चुअली डायरेक्ट कोर्स में वो होता है कि हमारा जो लोकल करेंसी रहता है डायरेक्ट कोर्स में मेन इंपॉर्टेंटली ये है डायरेक्ट कोर्स, ठीक है। सो इसमें जो लोकल करेंसी रहता है वो क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, और कौन सा वाला फिक्स्ड रहता है, फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड, ठीक है।
और इनडायरेक्ट कोर्स इसमें अपोजिट रहेगा ऑब्वियसली इनडायरेक्ट। अगर मैं इसको लिखूँगा आई डी, तो इनडायरेक्ट कोर्स में आपका जो लोकल करेंसी वो फिक्स्ड रहेगा, एंड कौन सा वाला वेरिएबल रहेगा, दैट इज फॉरेन करेंसी विल बी वेरी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है, क्या लिखा है उसमें, इन डायरेक्ट कोर्स लोकल करेंसी इज वेरिएबल, और इन इनडायरेक्ट कोर्स आपका लोकल करेंसी इज फिक्स्ड। सिंपल सी बात, इसमें आपका डायरेक्ट में लोकल करेंसी वेरी होगा, इन इनडायरेक्ट में आपका लोकल करेंसी फिक्स्ड होगा। सो ये दोनों है हमारा सही आंसर, दैट इज करेक्ट वन। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट दिया है, तो लोकल करेंसी जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर हमारा फॉरेन करेंसी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये फिक्स्ड रहेगा। और जहाँ पर आपका लोकल करेंसी फिक्स्ड है, यहाँ पर आपका फॉरेन करेंसी एफसी क्या होगा, दैट इज वेरी करेगा। ठीक है, सिंपल थिंग। सो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज द इनकरेक्ट वन। ठीक है, सो यहाँ पर जो बोला गया है, दिस इज द कम्प्लीटली अपोजिट। सो यहाँ का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। गॉट इट। सो जस्ट याद रखिएगा कि डायरेक्ट कोर्स में हमारा लोकल करेंसी वेरी करता है, और इनडायरेक्ट में लोकल करेंसी फिक्स रहता है। और एक भी याद रखिएगा तो आपका दूसरा हो जाएगा। इनडायरेक्ट में आपका क्या होता है, लोकल करेंसी फिक्स रहता है, डायरेक्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली अपोजिट। जहाँ पर आपका डायरेक्ट मतलब जैसे इनडायरेक्ट में आपका लोकल करेंसी फिक्स है, तो उसमें मतलब चेंजेस क्या होगा, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी। और जिसमें आपका लोकल करेंसी वेरी करता है, उसमें कांस्टेंट कौन सा रहेगा, फॉरेन करेंसी। सिंपल थिंग, एक को याद रखिए, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। गॉट इट। सो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट है आज के सेशन में। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, डू लाइक से सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट इट विल ऑल्सो मोटिवेट अस, व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, व्हाट्स योर नीड, सो दैट विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन द नेक्स्ट क्लासेस एज वेल। ठीक है, सो जो भी है आप जो फील कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर कि हम क्विजेस एंड यहाँ पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं आपका अपना क्वेरी रिलेटेड, एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद द ऑल द मेंबर्स अवेलेबल देयर। ठीक है, सो आपको लिंक मिल जाएगा हमारा अबाउट सेक्शन में और आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following currency is not quoted as indirect quotes। सो इस ये जो कितना करेंसी है, ठीक है, इसमें से कौन सा वाला हमारा इनडायरेक्ट क्वेट रेट में नॉट क्वेटेड मतलब मेंशन नहीं होता है। ठीक है, सो इसमें देखिए, इसमें न्यूजीलैंड डॉलर, यूएस डॉलर एंड यूरो एंड बीपी। ठीक है, सो इसमें जो मेंशन मतलब इनडायरेक्ट क्वेट्स में जो वाला क्वेटेड नहीं होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूएस डॉलर दैट इज नॉट क्वेटेड इन इनडायरेक्ट रेट्स। ठीक है, सो 11 question number option number B is the correct answer, all three are quoted in indirect quotes or indirect rates। ठीक है, so this is all about, not all about, there is something small part of the forex, so some important questions are also there जो रेटेड होता है, रेट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाता है फॉर श्योर। और एक क्वेश्चन है आपका क्रिस्टलाइजेशन, वो वाला भी याद रखिएगा, फॉरेक्स में वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और अगर आप हमारा स्ट्रैटेजी वाला सेशन नहीं देखें उसको देखिए, वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम आपको कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे आपका जो शॉर्ट टाइम पीरियड में, अगर जैसे हम बैंकर लोग हैं सो हमारे पास टाइम पीरियड नहीं होता है, सो जितना भी टाइम हम दे रहे हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वो इफेक्टिव रहे, दैट्स वाई इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने वो वाला सेशन बनाया है। सो एज अ रेफरेंस जस्ट टेक दैट एंड ऑल्सो ट्राई टू हैव योर ओन strategy so that you can get the success in a single go। so that's my suggestion for you all, and that's all। whatever if you like to ask also you can ask, and also what you want us to share in the next session you can also mention in the comment section as well। hopefully you like this session, and if you like it then do like, share and subscribe to our channel, and also share with your friends those who are preparing for the exams। so hopefully you all are preparing so well and enjoy the time, and also prepare with a good mind for the next one। ठीक है, so see you guys in the next, take care, bye bye, see you soon।